Good evening. We are again on the journey of civil trial in civil court, and we are taking up the orders and the rules. Civil Procedure Code that provides the procedure for civil trial in civil court, and we are discussing the schedule that provides the step-by-step procedure how the civil court proceed with the trial. Like our previous lectures, we will revisit within 1 minute about the civil trial, writing it here. Civil court. In civil court, the suit is being proceeded with filing of a plaint by the plaintiff for any cause of action. If the plaint is admitted, the processes are issued for the other party, that is defendants, जिसे डिफेंड करना है सूट को. After serving of process, the defendant shall make the appearance, and then he will file WS, set off or counterclaim, means reply to the plaint, and if anything is left from his side to be placed before the plaintiff, set off or the counterclaim. Thus we get the pleadings in the form of plaint, WS, set off, counterclaim, and then replication, that is a reply to WS if plaintiff wants to, and combinedly this is called the pleadings. After the pleadings, court intervenes and examine the witnesses, examine the parties, and examine the documents to be produced. Then there would be a process of admission null of the premises, means the pleadings of both the parties, and the point of determination for the suit. Point of determination of the suit. If some part of the claim is being admitted, then there will be a judgment on admission. And if there is some controversy, there are some points conflicting between the parties, one confirms and other denies, then issues would be framed. And onus would be placed on the party who takes the plea to prove, onus to prove. And after placing the onus, the trial shall commence and parties will lead their evidence. The plaintiff shall lead it as plaintiff's evidence. Defendant shall leave it defendant's evidence. Evidence in rebuttal can also come. Evidence in rebuttal can also come. And on conclusion of the evidence, the hearing shall take place for the arguments to appreciate their evidence, and after hearing there would be a judgment. And if a judgment decides some claims in favor of the plaintiff and decree is being passed, then execution. These are the stages of trial. Accordingly, the schedule has been framed to state the orders having the rules within which
the civil code will proceed stepwise. We had informed in our previous lectures, in the previous series, order 1 was relating to parties, and the important rule was order 1 rule 10 that allows alternation of parties, member parties, either for striking of the party or adding of the party. Once parties are confirmed, then we proceed to order 2. Order 2 talks about the frame of the suit, and in this order the important rule was rule 2 and 3 that talks about the claim and relief. Whole claim should be sought by the plaintiff, because if any part of the claim is being relinquished, that would not be taken up in the fresh suit. And reliefs, whatever reliefs are available for the cause of action, all reliefs have to be stated. Okay. Order 3 was relating to authority and representatives of the parties. Anyone can appear through authorized representative. If the party is not able to appear in person, they can appoint their authorized representatives. Order 4 was relating to institution of suit. I told you, suit is instituted by filing of plaint. If the plaint is filed, then suit is instituted if registered. And registration. Once you register the plaint, you get a number and your suit would be numbered according to that for the purpose of identification, and then proceed further. Order 5 was relating to processes. I told you, once parties are decided, plaint is filed, processes will go to another party, yani कि defendants or defendant. And in this rule, we had, in this order, we had important rule as rule 19A and 20 that talks about simultaneous process, substituted process. Simultaneous process or substituted process. When ordinary processes are not able to reach to the parties, to the defendant, then there is a provision of substitution of the process by way of fixing, beat of drum and otherwise. And if that is also not possible, then by way of publication, that is substituted service. Okay. Order 6 talks about plaint, pleadings. Here the important rule is rule 17 that talks about again alteration of the pleadings, like parties, alteration of pleadings, that is amendment. An amendment is possible if the party proves the bona fide for not placing the amendment in time at the time of filing of plaint, and that the amendment is necessary for determination of the issue in question. Okay. जिस सूट में जो इशू है, कॉज ऑफ एक्शन है, जिसको वो प्रूव करना चाहता है, जिसके लिए क्लेम के लिए आया है, वो जरूरी है यह अमेंडमेंट उसके डिटर्मिनेशन के लिए, तो कोर्ट में अलाउ. Then we come to order 7. This is an important rule. Order 7 makes it clear whether suit will continue or suit will not. So it is relating to plaint may be admitted, plaint may be returned, or plaint may be rejected. Okay. This is rule 9, 10 and 11. Rule 13 is also very important for this. That tells you if the
Plaintiff is rejected, fresh suit is not barred. It does not preclude filing of fresh suit. So this is important for the person who is interested in practice or even for the judiciary point of view, that fresh suit is not precluded, is not barred. ओके ऑर्डर 7 में एक और भी इंपॉर्टेंट रूल है, वो है सीकिंग एग्जम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन. Exemption from limitation. If suit is barred by limitation, then what is the remedy available? Because law of limitation does not provide any remedy for the delayed suit. So this is the rule 6, order 7, that provides the remedy that you can seek an exemption giving the grounds in the plaintiff itself for what limitation is sought to be exempted. Okay. Then we proceed to order that is relating to WS, the pleadings of the defendant, the important rule is rule 1 and rule 10. Rule 1 prescribed certain period of limitation of how many days? 30 days. It may be extended up to 90 days, and in case of commercial court 120 days for filing of written statement, not beyond that. 10 talks about if WS is not filed within the stipulated period or within the time prescribed granted by the court, then judgment may be pronounced on non-filing of counter reply by the defendant. Then we had gone to order 9. Order 9 talks about the appearance of parties. Appearance of parties and its effect. If either of the party does not appear, then what is the effect? If plaintiff does not appear, dismiss in default. If plaintiff does not take steps for trial processes, PF not filed, then dismissed for non-prosecution. If defendant does not appear, then ex parte, एक तरफा हो जाएगा. डिफेंडेंट के पास भी रेमेडी अवेलेबल है. 9(4) ऑर्डर रूल 4, ऑर्डर रूल 9, रूल 6, 7, ऑर्डर 9, रूल 9. दीज आर दी रेमेडियल रूल्स जो ये प्रोवाइड करते हैं. डिफॉल्ट हो जाएगा तो रिस्टोर कर सकते हैं, एक्स पार्टी हो जाएगा तो सेट असाइड हो सकता है. अगर मान लीजिए रिस्टोर कराना है तो 9 में सूट डिसमिशन डिफॉल्ट के बाद कर सकते हैं. अगर दूसरी पार्टी अपीयर हो गई है, उसके बाद प्लेंटिफ नहीं आया, बट इसके लिए नोटिस जरूरी है दूसरी पार्टी. 9(4) इज द स्टेज वेयर सेकंड पार्टी की अपीयरेंस अभी नहीं हुई और डिसमिशन डिफॉल्ट हो गया. 9(9) इज दूसरी पार्टी आ चुकी है और आप प्लेंटिफ नहीं आया, तब डिफॉल्ट हो गया. तो ये दीज आर द रिस्टोरेशंस of ex parte or dismissal orders. 9(13) is also very important, that talks about the setting aside of ex parte degree. Ex parte degree. So अगर आपकी डिग्री भी, आपकी जजमेंट भी ex parte हो गई है तो उसको भी सेट असाइड कर सकते हो, बट विद इन दी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स. ओके. Then we had seen order 10 and order 11, that is relating to examination of parties and documents and interrogatories. So these are the stages 10 and 11 where court intervenes to crystallize the pleadings and documents, whether the parties admitted parties are disputing. So पार्टीज भी एग्जामिन होंगी और इंटरोगेटरी भी हो सकती है उनकी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में. पार्टीज अपने क्वेश्चनर भी दे सकते हैं. और बेसिकली कोर्ट
एक स्टेप्स लेता है, एक कोशिश करता है कि पार्टीज का रियल डिस्प्यूट बेसिकली क्या है या नहीं है। अगर नहीं है तो जजमेंट हो जाएगा, अगर एडमिशन है तो भी जजमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर है तब ट्रायल चलेगा, तब ट्रायल कमेंस होगा। इसके बाद हम लोग जाते हैं ऑर्डर 12 में, दैट टॉक्स अबाउट द डॉक्यूमेंट्स। ऑर्डर 13 जो that is also relating to document. It is relating to impounding of document और return of document. कब document impound हो सकते हैं, कब document return हो सकते हैं. So these are technical things and basically documents को original documents हैं, copy हैं, admit होने हैं, नहीं होने हैं, ये सारी चीज़ों के लिए कोर्ट ट्रायल से पहले ही ये कर लेता है. Now court proceed to frame the issues under order 14. Issues में conflicting points, जहां disputed facts हैं, disputed documents हैं और उनको प्रूव करने की जरूरत है. एक पार्टी कंफर्म कर रही, दूसरी पार्टी डिस्प्यूट कर रही है और किसी तरह से भी नहीं पॉसिबल हो रहा है, तो ऑर्डर 14 विल टेल यू द कंप्लीट प्रोसीजर हाउ द इश्यूज आर फ्रेम्ड. इसमें भी इश्यूज दो तरह के हैं, प्रिलिमिनरी इश्यूज हैं और फाइनल इश्यूज हैं. जो प्रिलिमिनरी इश्यूज है वो इश्यूज है जिनमें एविडेंस की जरूरत नहीं है, हियरिंग के बाद वो डिस्पोजल हो सकते हैं. लाइक जुरिडिक्शन का इश्यू अगर मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स नहीं है और उसमें एविडेंस की जरूरत नहीं है तो वो डिसाइड हो सकता है, उससे सूट डिसाइड हो सकता है. इस तरह लिमिटेशन का इशू है. तो इस तरह के इश्यूज हैं जिनमें कि अगर ये इनके लिए एविडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये प्रिलिमिनरी इशू ट्रीट करके और पहले टेकअप हो सकते हैं. इसी तरह से जो इश्यूज हैं जो प्रिलिमिनरी नहीं हो सकते, जिनके लिए एविडेंस की रिक्वायरमेंट है, उनके ऊपर ऑनर्स प्लेस कर देते हैं. ऑनर्स किसके ऊपर है? ऑर्डर 15 है. ऑर्डर 15 टॉक्स अबाउट कि किन किन सिचुएशन में जजमेंट हो सकती है बिना एविडेंस के, किन किन सिचुएशन में जजमेंट की जा सकती है बिना एविडेंस के, यानी कि ट्रायल की जरूरत नहीं है. अगर मान लीजिए पार्टीज आर नॉट एट इशू, पार्टीज के इश्यूज में इश्यूज है ही नहीं. जब इश्यूज नहीं है तो फिर ट्रायल कैसा, तो भी जजमेंट हो सकती है. पार्टीज में से कुछ पार्टीज है जो इश्यूज पर नहीं है, नॉट एट इशू, और उन्हें एविडेंस देने की जरूरत नहीं है. कुछ चीजें उन्होंने एडमिट कर ली हैं, उन्हें एविडेंस की जरूरत नहीं है, तब भी जजमेंट हो सकती है. पर्टिकुलरली उस पार्टी के लिए जो ना तो अपने काउंटर रिप्लाई दे रहा है ना उसे डिस्प्यूट कर रहा है. तीसरी स्टेज जब आती है जब दोनों पार्टीज में से कोई भी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, एविडेंस नॉट प्रोड्यूस्ड. तो ऐसे समय में ट्रायल के लिए जाने की जरूरत नहीं है. हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए इश्यूज नहीं है, पार्टीज आर नॉट एट इशू, पार्टीज आर नॉट प्रोड्यूसिंग देयर एविडेंस, द जजमेंट कैन बी पास्ड इवन विदाउट एविडेंस एंड हियरिंग. देन ऑर्डर 15 डिस्पोजल ऑफ सूट प्रोसीजर बता रहा है. उसके बाद हमने ऑर्डर 16 शुरू किया था पिछली बार. ऑर्डर 16 टॉक्स अबाउट द विटनेसेज, क्योंकि जब हमारे इश्यूज फ्रेम हो गए, ऑनर्स प्लेस हो गया और हमारे डिस्प्यूटेड फैक्ट्स आ गए, तो अब हमारे को जरूरत पड़ेगी विटनेसेज की और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेज की. प्रोसीजर ये है कि जैसे ही इश्यूज फ्रेम होंगे उसके 15 दिन के अंदर अंदर दोनों पार्टीज को अपनी लिस्ट ऑफ विटनेसेस देनी होंगी कि उन्होंने कौन कौन सी विटनेसेस एग्जामिन करनी है. राइट. ऑर्डर 16 टॉक्स अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के लिए आपने लिस्ट दे दी. आप एक काम कर सकते हैं, तो लिस्ट ऑफ विटनेसेस आपने दे दी, उन विटनेसेस को सम्मन मांग सकते हैं आप या खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं कि जी हमें सम्मन दे दीजिए, हम गवाहों को बुला लेंगे, या हम खुद ही पेश कर देंगे. तो दोनों पॉसिबल है. कुछ ऐसे गवाह होते हैं जो डॉक्यूमेंट पेश करने हैं, अथॉरिटीज हैं जिनको सम्मन जाना जरूरी है,
जैसे स्कूल का रिकॉर्ड पेश कराना है किसी स्कूल से, या कॉलेज से कहीं कोई डॉक्यूमेंट मंगाना है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो सम्मन्स इशू हो सकते हैं। और नहीं तो विटनेस ही, जैसे प्लेंटिव खुद है, प्लेंटिव के रिलेटिव है, वो खुद भी प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट आस्किंग फॉर दी सम्मन्स। अगर उन्हें सम्मन करने हैं विटनेस को तो एप्लीकेशन लगानी होगी और विटनेसेस का डाइट मनी देना होगा। डाइट मनी होता है एक्सपेंसेस, विटनेसेस के आने के लिए, आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन एंड डाइट मनी। कुछ कुछ नोटिफिकेशन है जिनमें कुछ पर्टिकुलर विटनेसेस के लिए डाइट मनी एक्सपेंसेस फिक्स्ड है, जैसे डॉक्टर्स को बुलाना है या किसी फर्स्ट क्लास गजेटेड ऑफिसर को बुलाना है, तो उनकी डाइट मनी फिक्स्ड है। तो जब आप एप्लीकेशन लगाएंगे सम्मन इशू करने के लिए तो आपको वो पहले ही जमा करना पड़ेगा। कोर्ट में परमिट की जब वो विटनेस आए तब आप दे दो, लेकिन ज्यादातर सम्मन्स के साथ आपको पहले एक्सपेंसेस लगाने होंगे। जब आपने सम्मन्स एक्सपेंसेस दे दिए, जमा कर दिए कोर्ट में, तब आपको सम्मन्स इशू हो जाएंगे और सम्मन्स पर गवाह आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। इस ऑर्डर 16 में जो इंपॉर्टेंट रूल है वो बेसिकली है 10, 12, 14, 20 भी कह सकते हैं थोड़ा सा। अब हम देखेंगे कि विटनेसेस एग्जामिनेशन और विटनेसेस जो ऑर्डर 16 है, इसमें 10 क्या कहता है। सम्मन्स तक हमने बात कर ली, सम्मन्स एक्सपेंसेस ओके, ऑल दिस प्रोसीजर इज प्रोवाइडेड। 10 कहता है कि अगर सम्मन्स सर्व हो गए तब विटनेस नहीं आता, तब क्या होगा। कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ विटनेसेस। अगर विटनेस को सम्मन गया है, विटनेस नहीं आ रहा है, या वो विटनेस एविडेंस नहीं दे रहा है, जब आ गया है तब भी नहीं दे रहा है, तो क्या कोर्ट के पास रास्ते हैं। कभी कभी आप ये सुनते हो कि सिविल कोर्ट में तो केस डिले ही होता रहता है, गवाह बुला रहे हैं, उनको सम्मन जा रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर हमें प्रोसीजर पता है, अगर हमने ध्यान से पढ़ लिया है, तो सीपीसी इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। उसने एक एक स्टेप और एक एक कंसिक्वेंस बता रखा है। सीपीसी में बहुत ध्यान से देखने की बात है, हम बहुत ध्यान से पढ़ते ही नहीं है, तो हमारे पास कंसिक्वेंसेज अवेलेबल है। ऑर्डर 16 रूल 12 क्या कहता है। ऑर्डर 16 रूल 12, व्हेन विटनेस फेल्स टू अपीयर, court will impose a fine, this is 12, fine not exceeding 500 rupees to be attached. ओके, मतलब कि फाइन भी कर सकते हैं, फाइन की रिकवरी का जो प्रोसीजर है अटैचमेंट का वो भी अलाउ कर सकते हैं। ओके, कंप्लाई विद सम्मन, सम्मन सर्व हो गए उसके बाद नहीं आ रहे हैं, विटनेस विल कम इधर टू गिव द एविडेंस, ऑकुलर एविडेंस, और टू प्रोड्यूस द। रूल 12 में कोर्ट कैन डू, अगर सम्मन सर्व हो गए हैं उसके बाद भी नहीं अपीयर हो रहे हैं, ना डॉक्यूमेंट दे रहे, डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए कहा गया है, तो फाइन इंपोज कर सकता है कोर्ट, बट नॉट ग्रेटर देन 500 रुपीज। और अगर वो फाइन का अटैचमेंट ऑर्डर भी भेज सकता है रिकवरी के लिए। ठीक है। 10 क्या कहता है कि अगर सर्विस हो गई तो सर्विस के बाद कोर्ट पहले क्या करेगा कि जो जिसने सर्विस किया उसका एफिडेविट लेगा और उसकी एविडेंस कराएगा कि मैंने सर्विस करी है। यह भी हो सकता है वो आके कि मुझे तो सर्विस नहीं मिली, इसने कहा है सर्विस करी है, तो उसको पहले एग्जामिन करेंगे सर्विंग ऑफिसर को, उसका एफिडेविट लेंगे कि हाँ तुमने सर्व किया है। जब ये श्योर हो जाएगा कि वो इंटेंशनली अवॉइड कर रहा है सर्विस के बावजूद भी, तब प्रोक्लेमेशन अनाउंस कर सकता है कोर्ट, प्रोक्लेमेशन को उसके दरवाजे पर चिपकाने का ऑर्डर कर सकता है, वारंट भी इशू कर सकता है, बेलेबल और अवेलेबल वारंट फॉर अरेस्ट, एंड अटैचमेंट कर सकता है फॉर द फाइन दैट वाज टू बी इम्पोज्ड अंडर रूल 12।
Okay, so it is not just issuing process. Summons are served, that witnesses are served but they are not coming. तो ऐसा नहीं है कि डिले सिविल कोर्ट में चलता रहता है. अगर सम्मन सर्व नहीं हुआ है तो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट कैन आस्क फॉर द इश्यूएंस ऑफ वारंट in case it is proved that he is intentionally avoiding the witness. So speedy procedure, expeditious procedure के सारे फार्मूले, सारे स्टेप्स ऑलरेडी सीपीसी में शेड्यूल के थ्रू दे रखे हैं. ठीक है, तो ये कोर्सिव मीन्स है फॉर अपीयरेंस ऑफ विटनेसेस. पार्टीज की अपीयरेंस जो है वो ऑर्डर 9 में है. विटनेसेस की अपीयरेंस के कोर्सिव मीन्स जो है वो ऑर्डर 16 में है. ऑर्डर 9 में हमने क्या कहा, अगर प्लेंटिफ नहीं आएगा तो सूट डिसमिस हो जाएगा, डिफेंडेंट नहीं आएगा तो एक्स पार्टे हो जाएगा, और अगर एक्स पार्टे रह ही जाएगा तो जजमेंट भी हो जाएगी एक्स पार्टे. उसकी रेमेडीज भी प्रोवाइडेड है. अगर लॉफुल एक्सक्यूज है तो वो रिस्टोर भी हो सकता है. लेकिन ये ऑर्डर 16 टॉक्स अबाउट द विटनेसेस. अगर विटनेस सम्मन सर्व होने के बाद नहीं आती है तो व्हाट आर द कोर्सिव मीन्स अवेलेबल विद द कोर्ट टू सम्मन हिम, टू प्रोड्यूस हिम इन द कोर्ट. सो एंड 14 टॉक्स अबाउट एक स्ट्रेंजर को भी कोर्ट अपने आप विटनेस बुला सकता है. अभी तक हमने यही देखा सिविल सूट में पार्टीज हो ये जो भी हो वो रेलेवेंट होनी चाहिए उस पर्टिकुलर सूट से, उनका कनेक्शन होना चाहिए कॉज ऑफ एक्शन से. अगर प्लेंटिफ कॉज ऑफ एक्शन है तभी वो करेगा, प्लेन फाइल करेगा. डब्ल्यूएस डिफेंडेंट को बुलाएगा जब उसका कॉज ऑफ एक्शन से रिलेशन है, बिकॉज इट इज ए लिटिगेशन बिटवीन राइट्स एंड लाइबिलिटीज. प्लेंटिफ हैज ए राइट दैट हैज बीन इन्फ्रिंज, ही हैज ए कॉज ऑफ एक्शन, डिफेंडेंट हैज ए लाइबिलिटी टू हैव टू रेस्पेक्ट दैट राइट, तभी सूट जाएगा. राइट, तो विटनेस के लिए भी कोर्सिव मीन्स अवेलेबल है कि उसको कोर्ट में कैसे बुलाना है. तो 14 में यह है कि एक स्ट्रेंजर विटनेस को कोर्ट बुला सकता है अगर वो समझे कि ये डिटर्मिनेशन ऑफ इश्यूज के लिए रिक्वायर्ड है. 20 जो है वो एक खास बात कहता है कि अगर मान लीजिए विटनेस रिफ्यूज कर दे, एक तो हुआ सर्विस हो गई नहीं आए, डॉक्यूमेंट भी पेश नहीं किए, एक हो गया कि आ भी गए, रिफ्यूज कर दे गवाही देने से. विटनेस refuses to give evidence or to produce document, देन क्या होगा? तब कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है? रूल 20 रिफ्यूजल ऑफ गिविंग एविडेंस. रूल 20 विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज यानी कि कोर्ट रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देता है टू टेल यू टू गिव योर रीजंस फॉर नॉन अपीयरेंस. उसके बाद ही कोर्सिव मीन्स अडॉप्ट करेगा, फाइन का चाहे अटैचमेंट का या वारंट का. अगर कोई अपील होता है लॉफुल एक्सक्यूज देता है कि मैं बीमार था, मेरे को ये प्रॉब्लम हो गया, तो वो मे पार्डन. कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट, मे प्रोनाउंस जजमेंट. अगर आप कोर्ट में आ भी गए, गवाह आ गया है और एविडेंस नहीं मना कर रहा है, मान लीजिए प्लेंटिफ का एविडेंस है, वो प्लेंटिफ का विटनेस है और मना कर देता है या डॉक्यूमेंट देने से मना कर देता है, मेरे पास है ही नहीं, मैं नहीं देता, या मेरी मर्जी मैं नहीं देना चाहता, तो कोर्ट में प्रोनाउंस द जजमेंट अकॉर्डिंगली. मतलब वो ये मान सकता है कि अगर ये नहीं दे रहा है तो जो भी कुछ कहा गया वही सही है. राइट, द अदर पार्टी जिसका गवाह है अगर वो रिफ्यूज कर रहा है देने से या वो डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है तो ये माना जाएगा कि जो दूसरी पार्टी कह रही है, जो इसका जिसका गवाह है उसकी दूसरी पार्टी वो सही कह रही है. क्योंकि जब तुम्हें मौका दिया जा रहा है अपनी बात बताने का तो कहो, अपना एविडेंस देने का. जब तुम्हारे पास एविडेंस भी नहीं है, तुम डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हो, तुम आए भी हो, रिफ्यूज कर रहे हो, तो सीधी सी बात है that you had nothing to say, nothing to produce, then judgment may be pronounced. So order 16 में अब हम ट्रायल पर हैं, ट्रायल शुरू हो चुका है. ऑर्डर 16 में जहां ऑकुलर एविडेंस की बात आएगी वहां रूल 10
जो इंटेंशनली अवॉइडिंग पर जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो बताएंगे, प्रोक्लेमेशन हो सकती है, अरेस्ट वारंट हो सकते हैं। 12 क्या फाइन इंपोज कर सकते हैं और वो कैसे रिकवर होएगा। 14 ये कहता है कि एक स्ट्रेंजर को भी कोर्ट गवाही के लिए बुला सकती है अगर वो समझते हैं कि डिटर्मिनेशन की जरूरी है। और 20 कहता है कि अगर कोई विटनेस आ जाता है और वो ना तो गवाह देने को तैयार है या अपना डॉक्यूमेंट पेश करने को तैयार नहीं है, कोर्ट में प्रोनाउंस द जजमेंट। सो इट वाज रिलेटिंग टू द एविडेंस। नाउ वी विल मूव टू ऑर्डर 17। Order 17 is very beautiful. It is relating to adjournment. ज्यादातर आपने सुना होगा अदालतें क्या करती हैं, तारीख पर तारीख, राइट। तो एडजॉर्नमेंट बहुत बड़ा इशू है डिले और एक्सपीडिशियस ट्रायल का। अब वकील साहब ने केस ले लिया, क्लाइंट बोल रहा है जल्दी जल्दी करवाओ, वकील साहब बोल रहे हैं मैं क्या करूं, दूसरी पार्टी आगे चलने नहीं देती केस को, हर डेट पे डेट मांग लेती है, कोर्ट भी डेट दे देता है। वकील साहब अपने क्लाइंट को समझा रहे हैं कोर्ट में डेट का एडजॉर्नमेंट इतनी आसानी से नहीं होता है, तारीख नहीं है सिस्टम। एडजॉर्नमेंट के बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और क्या क्या ग्राउंड्स हैं जिन पर एडजॉर्नमेंट ली जा सकती है, नहीं ली जा सकती, ये सीपीसी में लिखा हुआ है रूल्स में। अब हम इसको थोड़ा लाउडली पढ़ेंगे वो वाले रूल को जिसमें एडजॉर्नमेंट के रूल लिखे हुए हैं, बिकॉज एडवोकेट साहब ने या तो उन्हें पता नहीं होता या पता भी होता है तो वकील साहब क्लाइंट को नहीं बताते हैं। एडजॉर्नमेंट का क्या ग्राउंड हो सकता है, क्या ग्राउंड नहीं हो सकता है। सीपीसी सेज द ट्रायल शैल कंटिन्यू ऑन डे टू डे बेसिस। अब जब डे टू डे चलेगा तो साल क्यों लगेंगे, इतने साल क्यों लगेंगे सिविल कोर्ट में, कोर्ट में चला गया अब तो सालों में चलेगा मुकदमा। सफिशिएंट कॉज इज शोन, वन कहता है, रूल 1 कहता है सफिशिएंट कॉज इज शोन तो एडजॉर्न कर सकता है। सफिशिएंट कॉज थ्योरी तो सब जगह ही लगेगी, हर जगह ही लगती है, अमेंडमेंट कराना तब लग जाएगी, अगर आपने टाइम पर पेश नहीं किया केस को तब भी लग जाएगी, यहां भी सफिशिएंट कॉज लग जाएगा। अगर कोई सफिशिएंट कॉज है तो एडजॉर्नमेंट कर सकते, लेकिन इसके लिए उन्हें रीजंस देना पड़ेगा। अगर एडजॉर्न किया तो रीजंस आर टू बी अकॉर्डेड। ओके, आगे देखिए रूल 2 पढ़िए, इसी का पार्ट 2। अब कॉस्ट ऑफ एडजॉर्नमेंट देखिए क्या क्या है। डे टू डे, हाँ, एग्जामिन अंटिल ऑल द विटनेसेस आर एग्जामिन्ड। ओके, तो एक बार गवाही शुरू हो गई तो जब तक सारे गवाह नहीं होंगे तब तक ये चलते रहेगा डे टू डे। आगे अनलेस एक्सेप्शनल रीजंस एंड दैट हैज टू बी अकॉर्डेड, बिना अकॉर्डेड के नहीं होगा, लिखना पड़ेगा रीजन। नो एडजॉर्नमेंट बियॉन्ड द कंट्रोल। सी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल, ऐसे सर्कमस्टांसेस जो बियॉन्ड द कंट्रोल है। किसी प्लीडर का ये कहना, किसी वकील का ये कहना कि वो दूसरे कोर्ट में बिजी है, दैट इज नॉट ए ग्राउंड फॉर एडजॉर्नमेंट। ओके, बिजी इन अनदर कोर्ट इज नॉट ए ग्राउंड, नॉट ए ग्राउंड, एडजॉर्नमेंट इस ग्राउंड पर नहीं मिलेगा। आगे देखिए, वकील साहब बीमार है जी, इलनेस ऑफ द प्लीडर। पहली बात, अगर मान लीजिए वकील साहब बीमार हैं तो कोर्ट को यह सेटिस्फेक्शन करना पड़ेगा कि जो टाइम है उस टाइम में दूसरा प्लीडर नहीं ला सकता। अगर वकील साहब बीमार है दूसरा प्लीडर लाओ, काम आगे चलाओ। तो कोर्ट को यह सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि वकील साहब तो पहले वाले वकील साहब बीमार हैं, अगर दूसरे वकील साहब करने का टाइम नहीं है तो कोर्ट कैन ग्रांट एडजॉर्नमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ इलनेस। उसमें भी कोर्ट को सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि इलनेस है, राइट। तो ऐसा नहीं है हम ये कहते हैं जो रोज कभी तो वकील बीमार हो जाते हैं और कभी जी वो दूसरी कोर्ट में बिजी रहते हैं, तो दीज आर नॉट द ग्राउंड। सीपीसी
schedule order 17 that deals about adjournment clearly says that this is not the ground, no adjournment, day-to-day hearing until all witnesses are examined, exceptional circumstances, reasons to be accorded, beyond the control होएगा तभी होएगा adjournment। देखिए बीच दूसरे कोर्ट में है, ये दिस इज नो ग्राउंड, इलनेस है तो दूसरा प्लीडर लाना पड़ेगा आपको। देखिए अगर मान लीजिए विटनेस प्रेजेंट है, पार्टी नहीं आई, प्लीडर भी नहीं है, तो कोर्ट इसकी एग्जामिनेशन कर सकती है अपने आप। विटनेस ने क्या करना, खुद ही बता रहा है ना। और अगर वो क्रॉस एग्जामिन करना है उसे, दूसरी तरफ की पार्टी वाला नहीं है, पेश कर रहा है, तो वो इसके चीफ इन एग्जामिनेशन पर ही जजमेंट रिकॉर्ड कर सकती है। उसकी राइट टू क्रॉस एग्जामिन की राइट बंद कर सकती है। ठीक है, एक पार्टी का गवाह है, वो पार्टी प्लेंटिव है, उसे एग्जामिनेशन करना था, नहीं आया या प्लीडर नहीं आया, तो कोर्ट कैन एग्जामिन दैट विटनेस। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन वाला है वो नहीं आया, तो क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट खत्म कर सकते हैं, मे प्रोसीड फर्दर। ओके, तो ऐसा नहीं है, एडजॉर्नमेंट इज नॉट ए फन, इट इज नॉट दैट सिविल कोर्ट में बार बार एडजॉर्नमेंट मिलता है, बस ये वाला एडजॉर्नमेंट का ऑर्डर 17। सो इस वाले ऑर्डर में सिर्फ इतना ही है कि कॉस्ट इंपोज कर सकते हैं, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में रीजन रिकॉर्ड करके एडजॉर्न कर सकते हैं, नो एडजॉर्नमेंट रूल है, बियॉन्ड कंट्रोल में ही करेंगे। बीजी इन अनदर कोर्ट इज नो ग्राउंड, इलनेस होएगा तो दूसरा प्लीडर लाओ, दूसरा प्लीडर नहीं ला सकते तो करो। सो 17 में, ऑर्डर 17 में इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब हम जाएंगे ऑर्डर 18। ऑर्डर 18 टॉक्स अबाउट नाउ प्रैक्टिकल हियरिंग एंड एविडेंस रिकॉर्डिंग। ओके, हियरिंग एंड एविडेंस रिकॉर्डिंग, मैंने आपको जब स्टेजेस बताई थी तो मैंने बताया था कि प्लीडिंग्स कंप्लीट हो गई, इश्यूज डिटरमिन हो गए, उसके बाद एविडेंस पे जाएंगी दोनों पार्टीज, एविडेंस रिकॉर्डिंग एंड देन हियरिंग, और उसके बाद जजमेंट। सो ये हियरिंग एंड एविडेंस रिकॉर्डिंग, इसमें एविडेंस एक्ट आ जाता है, लॉ ऑफ एविडेंस, ऑकुलर एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होगा, कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, ये सारा तो लॉ ऑफ एविडेंस से चलेगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि एविडेंस रिकॉर्डिंग के टाइम पर, एविडेंस के लिए हमने आपको बता दिया है कि दोनों पार्टीज प्लेंटिफ ऑफ डिफेंडेंट लिस्ट ऑफ विटनेस देती हैं, कौन कौन सा हमें एविडेंस लाना है। ठीक है, तो उन्हें पता है कौन कौन से गवाह आएंगे, वो सम्मन कर सकती है या प्रोड्यूस कर सकती हैं गवाहों को, दोनों पार्टीज। ऑर्डर 18 इज एप्लीकेबल फॉर प्लेंटिफ एज वेल एज डिफेंडेंट। इसमें सिर्फ ये देखना है, एक रूल इंपॉर्टेंट है 17 और 17A। इट टॉक्स अबाउट एडिशनल एविडेंस और रिकॉलिंग ऑफ एविडेंस। जैसे हमने क्रिमिनल प्रोसीजर के वक्त बताया था कि सेक्शन 311 जो है सीआरपीसी का, वो गवाह को रिकॉल कर सकता है और एडिशनल एविडेंस भी कर सकते हैं एट एनी स्टेज। ये उस तरह का है सीपीसी में, सिविल ट्रायल के लिए, कि आपको एडिशनल एविडेंस लाना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी लिस्ट ऑफ विटनेस में अपना एविडेंस खोल रखा है ना, और डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है, तो आपको एडिशनल एविडेंस लाना है इन द फॉर्म ऑफ ऑकुलर एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो कैसे लाएंगे, रिकॉलिंग ऑफ एविडेंस कैसे हो, क्या हम किसी गवाह को दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं जिसको हमने ऑलरेडी एग्जामिन कर दिया, तो ये पॉसिबल है। रूल वहीं पे होगा, वही सेम रूल जो हमने अल्टरेशन के लिए कहा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अल्टरेशन काइंड ऑफ थिंग, कि डिटर्मिनेशन ऑफ इश्यूज के लिए, कंट्रोवर्सी के लिए डिटर्मिनेशन करने के लिए वो जरूरी होना चाहिए। जैसे पार्टी कोई नहीं लाए हैं, अमेंडमेंट करिए प्लीडिंग में, उसमें भी यही रूल है कि अगर वो जरूरी है तो करो, बिकॉज टू हैव द ट्रूथ, पर्पज ऑफ ट्रायल इज टू अनर्थ द ट्रूथ। ट्रूथ को निकालने के लिए
अगर जरूरी है तो वो भी करो। ओके, तो ये सिर्फ एक रूल है 17 और 17A। इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि स्टेज क्या है, किस स्टेज तक ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई गवाह है जो पहले पता ही नहीं था उसको जब लिस्ट बनाई, या अचानक से बीच में आफ्टर फाइलिंग ऑफ लिस्ट आया उसकी नॉलेज में, तो 17A वुड बी हेल्पफुल। 17 कहता है रिकॉलिंग ऑफ ऑलरेडी एग्जामिन्ड विटनेस। 17A कहता है कोई ऐसा गवाह, कोई ऐसा एविडेंस जो उसकी नॉलेज में पहले नहीं था, एडिशनल एविडेंस। ओके, सो ये दिस इज टॉकिंग अबाउट एडिशनल एविडेंस, दिस इज टॉकिंग अबाउट रिकॉलिंग ऑफ एविडेंस। ये 17 जो था एडिशनल एविडेंस देने वाला, ये रिपील हो गया है, ये आपको याद रखना है 1999 में। ओके, पहले ये सुविधा अवेलेबल थी, अब ये सुविधा अवेलेबल नहीं है। ओके, सो ऑर्डर 18 में इतना ही है। नाउ वी विल हैव ऑर्डर 19। ऑर्डर 19 में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है जानने का। ऑर्डर 19 टॉक्स अबाउट एफिडेविट। आप अपना एविडेंस एफिडेविट से भी दे सकते हैं, राइट। एफिडेविट के रूल है कैसे कैसे डालना है, तो पार्टी का एविडेंस एफिडेविट से भी आ सकता है। ये सारा जब एविडेंस हो गया और हियरिंग भी हो गई, इसमें हियरिंग ऑर्डर 18 के अंदर हियरिंग जो है आर्ग्यूमेंट्स भी है। ऑर्डर 18 में एक पार्ट था एविडेंस और दूसरा पार्ट है हियरिंग। हियरिंग जो है वो एविडेंस खत्म होते ही, और मान लीजिए दूसरी पार्टी ने भी कर दिया और कोई रिबटल नहीं है, रिबटल एविडेंस नहीं है, तो हियरिंग भी डे टू डे पर चलेगी और पार्टीज अपना ब्रीफ सिनॉप्सिस भी दे सकती हैं, यानी कि रिटन आर्ग्यूमेंट्स। रिटन आर्ग्यूमेंट देने के बाद कॉपी दूसरी पार्टी को देना पड़ेगा, और रिटन आर्ग्यूमेंट के लिए आपको अलग से टाइम नहीं मिलेगा। आप अगर कहेंगे रिटन आर्ग्यूमेंट देने के लिए समय दे दीजिए, तो उसके लिए समय नहीं मिलेगा, राइट। तो डिले को कंट्रोल करने के लिए, एक्सपीडिशियस ट्रायल के लिए सीपीसी ने काफी प्रोविजन बना रखे हैं शेड्यूल के अंदर। और इसके बाद हम चलेंगे ऑर्डर 20, दैट इज ए जजमेंट। This would be in the next lecture, because this is very important. You have to see what are the necessary elements of judgment and how judgment would be recorded, right? So for today it is all. We have revisited the civil trial. हम दोबारा से समरी करते हैं जो आज हमने किया। CPC is a procedure code for civil trial. Okay, civil trial starts with filing of plaint, plaint यानी कि सूट, it gets registered and becomes civil suit numbered so and so, ऑफ से 22 में दाखिल किया तो 22। फाइलिंग ऑफ प्लेंट के बाद प्रोसीजर आ जाता है प्रोसेस का। अगर प्लेंट एडमिट हो गई तो, अगर प्लेंट एडमिट नहीं हुई, या तो एडमिट होगी या रिटर्न होगी या रिजेक्ट होगी। ओके, ये हमने आपको बताया था ऑर्डर 7 में। अगर आपका सूट टाइम बार्ड हो गया है, टाइम लिमिटेशन प्रॉब्लम है, तो यही रूल 6 इसका एग्जम्पशन भी करता है ऑफ लिमिटेशन। ओके, प्रोसेस इशू हो जाएगा। ऑर्डर 5 में प्रोसेस इशू करवाया था, उसमें इंपॉर्टेंट रूल बताया था सब्स्टिट्यूटेड साइमल्टेनियस प्रोसेस ऑल्सो। प्रोसेस के बाद डिफेंडेंट आ गया, अपीयरेंस हो गई, अपीयरेंस होने के बाद उसने अपना WS डाल दिया, सेट ऑफ डाल दिया और काउंटर क्लेम डाल दिया। ठीक है, अब प्लेडिंग्स आपकी कंप्लीट हो गई। प्लेडिंग्स में आपकी आई प्लेंट,
जो प्लेंटिफ ने फाइल की, WS सेट ऑफ और काउंटर क्लेम जो डिफेंडेंट ने फाइल किया, रेप्लिकेशन अगर मान लीजिए इसको उसका जवाब फाइल करना है तो ये प्लेंटिफ ने फाइल किया और ये सब मिलकर हो गई प्लीडिंग्स। प्लीडिंग्स कंप्लीट हो गई। उसके बाद कोर्ट एग्जामिनेशन करती है, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज एंड डॉक्यूमेंट्स। जब कोर्ट एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज एंड डॉक्यूमेंट कर देती है तो दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो एडमिशंस आ जाए, जो ए ने कहा है बी ने मान लिया, बी ने कहा है ए ने मान लिया, तो जितने पार्ट का एडमिशन आ गया, मान लीजिए 3 लाख का क्लेम है, 1.5 लाख मान लिया, तो एडमिशन होते ही एडमिशन की जजमेंट हो जाएगी, एडमिशन जजमेंट ऑन एडमिशन हो गया। अगर एडमिशन नहीं हुआ तो डिस्प्यूट हो जाएगा, डिस्प्यूटेड फैक्ट्स आ जाएंगे। एक पार्टी ने कंफर्म किया फैक्ट को और दूसरी पार्टी ने डिनाई कर दिया, डिस्प्यूटेड फैक्ट्स आते ही इश्यूज हो जाएंगे। इश्यूज में हम ऑनर्स डाल देंगे, ऑनर्स टू बी प्लेस्ड किस पार्टी पर पड़ेगा, जो कहेगा, जो असर्ट करेगा उस पर पड़ेगा एज पर एविडेंस एक्ट। ठीक है, डिस्प्यूटेड फैक्ट्स आए तो यह आ गया। इश्यूज आने के बाद आपने देख लिया कि एविडेंस हो जाएगा, विटनेसेस आ जाएंगी, डॉक्यूमेंट आ जाएगा, ऑकुलर एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एविडेंस होगा प्लेंटिफ का एविडेंस और डिफेंडेंट का एविडेंस, और अगर प्लेंटिफ डिफेंडेंट का एविडेंस होगा तो रिबटल भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, राइट। सबका एविडेंस आ गया तो इसके बाद हो गई हियरिंग, यानी दोनों पार्टीज हियरिंग में आर्गुमेंट में अपने अपने उसको अप्रिशिएट कर लेंगे। उसके बाद एविडेंस हो गया, हियरिंग भी हो गई, तो जजमेंट हो जाएगी। और जजमेंट में यदि डिक्री हुई, अगर डिसमिसल हुआ सूट तो कुछ भी नहीं रहेगा, अपील और रिवीजन और वो सब होगा। अगर डिक्री हुई है तो एग्जीक्यूशन होगी। जजमेंट के बाद हम देखेंगे कि 3 चीजें हैं, रिव्यू, रिवीजन और अपील। अपील फाइनल ऑर्डर के खिलाफ होती है, रिवीजन ऐसे ऑर्डर के खिलाफ होती है जो फाइनल नहीं है, नॉट फाइनल। ये दोनों अपर कोर्ट में होती हैं। एडीजे कोर्ट है तो हाई कोर्ट, नीचे की कोर्ट है तो एडीजे कोर्ट। रिवीजन और अपील, रिव्यू जो होती है सेम कोर्ट में होती है जिस कोर्ट ने जजमेंट दिया है, और ये सिर्फ तब हो सकती है जब टिपोग्राफिकल एरर होगा, मेरिट पर नहीं होता है रिव्यू। ओके, सो हमने पूरे के पूरे सिविल ट्रायल का वो देख लिया और ऑर्डर्स के साथ नाउ वी हैव रीच्ड टू जजमेंट। तो ऑलमोस्ट सिविल प्रोसीजर कोड में जो मेन चीजें हैं वो हमने कर ली हैं। अब हम जजमेंट देखेंगे और उसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट, जो कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं, सिर्फ उनको टिक करेंगे जो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, राइट। तो हम जजमेंट के बाद अब हम पिक एंड चूज करेंगे ऑर्डर्स का, कौन कौन से ऑर्डर्स हमें प्रैक्टिस में ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, राइट। तो वो हम इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स पर चले जाएंगे जजमेंट के बाद, एंड वी विल कंक्लूड आवर CPC विद इन 2 or 3 lectures. Okay, then we will proceed with the criminal trial in criminal procedure. Any questions please? किसी को कुछ नहीं क्लियर हुआ हो तो थैंक यू।